A very good morning to all of you. I welcome you all to this press conference, which has specifically been planned for launch of admissions, undergraduate admissions. As you all are aware that we undertake the process of admissions at undergraduate level primarily in three modes. The first is on the basis of CUET, which is conducted for admissions at 69 colleges or departments of the university. Second, the School of Open Learning, which is on the basis of class 12th marks. And third, NC-Web, which is primarily for the girls from NCT of Delhi, which is also based on class 12th marks. So this is just a brief introduction about today's press conference. I would request Professor Haneed Gandhi to make a presentation. She will make the presentation. Then whatever your queries and concerns are there, we would be happy to answer all those things to the extent possible. Thank you so much. Good afternoon. Namaskar sabhi ko. Thank you, sir, for inviting me to give the presentation, and invitations are extended to all the members who are present from the media in this hall. Today, like every year, we express our gratitude of the members of the media who are present in this hall for joining us in the launch of our first phase of common seat allocation system for the admissions to undergraduate programs. As our registrar sir just said, today we will launch the first phase to 79 programs of University of Delhi, which also includes a BA program. In BA program, we have 183 combinations this year, and all these will be offered in 69 colleges and departments of University of Delhi to approximately 71,000 seats. There are no major changes. The CSAS portal जो पिछले साल का था वैसा ही है, पिछले 2 सालों से जो चल रहा था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. तो पॉलिसीज़ और हमारी एलोकेशन की जो प्रोसीजर्स हैं, they are almost the same. Nevertheless, for the benefit of the students. So our admission websites, the admission portal जो जिस पे बच्चे आज से registration शुरू कर सकते हैं, उसका admission portal है ugadmission.uod.ac.in. This will be made live soon after this press conference, and all the information that I'm sharing here will also be available on our website admission.uod.ac.in. We offer admissions to, as I just said, to 79 undergraduate programs in 69 colleges, which also includes 183 BA program combinations. And we are offering admissions to approximately 71,000 seats, and this excludes the supernumerary seats. The seats are available in our various courses: BSc, BCom, BBA, BA Music, BMS, BA Honours, BA Program, BVOC, BFA, BLEd. The phase 1, which will be launched today, this is a simple profile building जिसमें बच्चे अपनी सिर्फ प्रोफाइल बनाते हैं. इसके ये 6 स्टेप्स होते हैं जिसमें बच्चे पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन. पर्सनल डिटेल्स में नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अनचेंज्ड होता है, यानी जो उन्होंने CUET 2024 में भरा होगा, अब उनका नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, दिस विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड एंड दीज विल नॉट बी एडिटेबल. द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आर ऑल्सो ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम द CUET पोर्टल, बट देयर इज अ प्रोविजन टू चेंज. अगर बच्चे चाहें तो इस समय अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो PWD में ही कैटेगरी में रहेंगे, बिकॉज उन्होंने CUET में PWD का जो बेनिफिट्स थे वो लिए होंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दिस they can change their profile, but their name, photograph and signatures change नहीं हो पाएंगे. They will have to enter the academic details, यानी कक्षा 12वीं के उनके जो मार्क्स थे, क्योंकि अब रिजल्ट्स आ चुके हैं सभी बोर्ड्स के. They will have to enter their marks, और आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ही important step है, because later when they come to the CUET mapping, subject mapping, this becomes a very important step, because as you would remember, हम जब एडमिशन करेंगे, हमारी एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो उनमें हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं जो उनके CUET के वही सब्जेक्ट्स हम पिक करते हैं जो उन्होंने क्लास 12th में दिए हों. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू कीप इन माइंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टू enter the subjects of class 12th carefully and the marks that they've got. If the class 12th, if the mark sheet contains both 11th and class 12th marks, then the students must enter only the class 12th marks here. Next, there is a section of our supernumerary seats on ECA and sports.
Here, the students who wish to take admission under these two supernumerary categories make a choice of the ECA and sports categories. The final stage is uploading the documents as per the information provided in the profile section and the academic and ECA section. Here, the important stage is that your profile, the documents should be legitimate, valid, and everything, the date should match with the procedures and the policies laid down by the University of Delhi. After submitting the form, the last stage is to preview and then do the payment. The registration payment there is only one time for phase 1, phase 2 including, there is only one time payment for common seat allocation system of undergraduate. For unreserved category, OBC and EWS, there is a nominal payment of rupees 250. For SC, ST and PWD candidates, the fees is 100 rupees. इसके अलावा अगर आप ECA या स्पोर्ट्स की चॉइस करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ एडिशनल नॉन रिफंडेबल देने होंगे. हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ट्रायल बेस्ड हैं, जैसे कि BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और BA म्यूज़िक के जो 3 प्रोग्राम्स हैं, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे. दिस विल बी ओनली फॉर द ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम्स. Simple advices that we issue every year. We request students to take utmost care while submitting all their details. They must also take care in filling their class 12th marks carefully, because हालांकि एडमिशन तो CUET के आधार पर है, अगर हमें लेकिन टाई ब्रेक करना पड़ा, जैसे कि CUET में इस बार कहा है कि हो सकता है हमें स्कोर रॉ स्कोर में मिले या नॉर्मलाइज में मिले, जैसे भी हमें स्कोर मिलेंगे तो हो सकता है इस साल हमें टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाने पड़ेंगे. सो वी एडवाइज कैंडिडेट्स टू फिल द मार्क्स एक्यूरेटली टू 2 decimal places, and these will be treated. We may have to use it this year to break the ties if need be. They must ensure that all the documents are in the valid prescribed format. The formats are also part of the CSAS document. हमने हर डॉक्यूमेंट, हर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अपने डॉक्यूमेंट के एंड में दिया हुआ है. They must also keep in mind that if they belong to OBC category or EWS category, then their certificate should be issued after 31st of March 2024. And they should not be in a haste to fill the form. Fill the form carefully. We will be opening this portal for a very long time. तकरीबन 1 महीना हमारा ये पोर्टल खुला रहेगा, तो फॉर्म ध्यान से फिल करें. The second phase of common seat allocation system will be launched after the CUET results are announced. इसके बाद बच्चों को दोबारा अपने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा CSAS में, वो दोबारा लॉगिन करेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस देंगे प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंसेस, कॉलेज की एंटिटीज़ पे. वी ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 1534 program plus college combinations. Here the candidates in phase 2 will have to again re-log in and will have to do a subject mapping. याद दिला दे, subject mapping is one of the bases of admissions. Any mistake done in subject mapping may lead to cancellation or consideration of the form. तो subject mapping जो आपने CUET में पेपर दिया है और जो आपने phase 1 में class 12 के subjects भरे होंगे, उसको आपको 1-to-1 मैप करना होगा. General test will not be mapped to any of the subjects. That will be not required. Then after the subject mapping, the students will get on their dashboard पे हम उन्हें दिखा देते हैं कि वो कितने programs के लिए eligible हैं. उनके मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास CUET के मार्क्स ऑटो इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो जितने प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स दैट दे हैव टेकन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन बेस्ट 4 combination of subjects of CUET. We make a list and we tell them their marks जो उनके हर कोर्स के लिए होंगे और जहाँ एलिजिबल होंगे. जहाँ एलिजिबल नहीं होंगे वो बच्चे उसको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. जहाँ जहाँ वो एलिजिबल होंगे, अब वो नेक्स्ट पेज पे आके उन कोर्सेज को या जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एक हमारे पास एक सर्च का विंडो रहता है, एडवांस सर्च. उससे वो कॉलेज के आधार पर, अगर कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देना चाहे तो वैसे सॉर्ट करके प्रेफरेंसेस दे सकते हैं. अगर वो कोर्स के आधार पर देना चाहे तो कोर्स के आधार पर दे सकते हैं. एज दे विश टू, they can make the combination and preferences. The preferences given at this time are at utmost importance because they make the basis for admissions throughout of the CSAS cycle, including supernumerary. Supernumerary में भी हम इन्हीं preferences के आधार पर ही करते हैं. Preferences देने के बाद they submit मतलब आप सेव करते जाइए. जितनी आप प्रेफरेंसेस, चाहे आपने 2 प्रेफरेंस भरी आप सेव दबाइए, आपने 10 भरी आप सेव दबाइए, आपने 200 भर दी आप सेव दबाइए. सेव करते करते ही आप आगे बढ़ते जाइए. डोंट वेट दैट you'll fill the preferences and then come back. We advise you to keep pressing the save button
at a regular interval so that these saved preferences become the criteria. Anytime we don't close this preference window, CSAS 2 हम close नहीं करते हैं, last day तक open रखते हैं because बच्चे अपनी preferences add, delete, reorder, reshuffle करते रहते हैं. So there is no submission. We keep the save mode on. They keep saving the preferences and they start enlisting them. This, as we just said, is the most important stage of admissions. They have to take every stage very carefully, and this, once given the preferences, वो preferences में आप add और delete नहीं कर पाएंगे, reshuffle कर पाएंगे, उसके भी कुछ criteria, लेकिन addition, deletion पूरे CSAS में allowed नहीं होगा, और यही लास्ट में बनेंगे. तो अब बच्चे जब भरना शुरू करें तो अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में भी सोचना शुरू कर दें. Before the announcement of the first list, that means after the preference filling phase 2 के बाद हम simulated ranks निकालते हैं जिनसे बच्चों को अंदाज़ा लग जाता है कि उनके क्या रैंक हो सकती है. These ranks are on the basis of the preferences which we have at that time. Again, we will open the window for a couple of days where the students can again add, delete, revise, reorder their preferences. Henceforth, अब जो preferences save कर लेंगे वो आधार बन जाएगा पूरे admissions का. So after the simulated ranks, whatever the preferences are saved on the dashboard will become the basis of admissions. If you do not save the preferences, the last saved preferences will be auto-logged. Then we'll come to the final stage, which is the announcement of the allocations and admissions. These are dependent on the program-specific merit, depending on the eligibility, the category of the students, and of course the availability of seats. Once a candidate gets an allocation, she and he will have to accept the allocation. जो भी allocation आता है उसे आप accept करेंगे. ये एक mandatory step है. अगर आप accept नहीं करेंगे तो आगे की allocations का आप part नहीं बनेंगे. जो allocation आपको उस समय दी जा रही है वो आपकी best allocation है, depending on all the criteria, your preferences, program specific eligibility, your category and seats. So if you want to participate in the subsequent rounds, you will have to accept the allocation. If you do not accept the allocation, you may lose the eligibility to apply or be part of the CSAS regular rounds. Once you accept the allocation, then this is done automatically. The acceptance is reflected on the dashboard of our colleges. The colleges start functioning. वो आपकी approval या rejection करेंगे depending on the your eligibilities and checking of the eligibilities. अगर application reject करने से पहले भी हमारे colleges एक बार raise a query करते हैं, अगर आपकी कुछ भी वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपका certificate legitimate नहीं है, दोबारा लेना है, then also we give you a chance to resubmit your certificates. Once the principal of the college gives the approval, automatically there is a payment link which gets activated on the dashboard of the candidates, and the candidates will have to submit the fees. The candidates who submit their fees then become eligible to apply or to participate in the subsequent rounds. Before the announcement of any subsequent round, वो upgrade या freeze, ये दो option बच्चों के dashboard पे आते हैं. अगर आप upgrade करेंगे तो जो भी आपको preference, जो भी आपको allocation मिली है, उसके ऊपर की preferences को आप reorder कर सकते हैं, reshuffle कर सकते हैं, और अपग्रेड से आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे. अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वो आपकी एलोकेशन हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी, एंड यू विल बी लेफ्ट स्टैग्नेंट ऑन द एलोकेटेड सीट इन विच यू हैव टेकन द एडमिशन. तो सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपग्रेड का हमें बताना पड़ेगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं. एंड नो एक्शन इज ऑल्सो इक्वलेंट टू फ्रीज. अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे वो भी हम आपका फ्रीज ही मानेंगे, मतलब हम आपको अपग्रेड नहीं करेंगे उस राउंड में. हर राउंड से पहले आप इंडिकेट करेंगे इफ यू वांट टू गेट अपग्रेडेड. इफ यू चोजन फॉर फ्रीज देन it is for good. And Delhi University is also very liberal and generous to the students who miss the bus and do not fail to register themselves timely. We open a mid-entry after 2 rounds where the students, those who could not register themselves in the application phase now, can participate through mid-entry. If their admission has got cancelled for whatever reason, they can also participate in mid-entry by making a payment of 1,000 rupees. However, mid-entry participants cannot have a right to claim a seat which has been allocated to other candidates, and they will be considered for allocation only after all the candidates who applied earlier and have the merit scores higher than the last declared have been allocated. So we request students not to consider mid-entry as an option. Rather, they should admit themselves, rather they should apply themselves timely.
As said earlier, we also offer supernumerary seats to ECA and sports. We offer 26 sports and 14 ECA category, including NCC and NSS. 5% of the seats in each college are reserved for ECA and sports together, with the condition that each college can allocate between 1 to 4% to ECA and sports, subject to a maximum of 5% intake of the college. In addition, not more than 20 seats are earmarked seats of a quota shall be allocated to a single program. And for ECA and sports, हमारी मेरिट अलग से बनती है, जिसमें 75% ECA के या स्पोर्ट्स के आधार पर होते हैं, जिसमें उनके सर्टिफिकेट्स और ट्रायल्स के मार्क्स होते हैं, और 25% CUET के आधार पर होते हैं. यहाँ पर हम एक अलग से मेरिट लिस्ट बनाते हैं, CEM या CSM. Other admission supernumerary quotas are for PWD candidates, CW, Kashmiri migrant, Prime Minister's Scholarship Scheme for Jammu and Kashmir students, Sikkim nominees, and last year, if you would remember, we had opened our supernumerary seats to orphan students, those who have lost their parents those who don't have their parents. So in every program, her program mein, one male and one female gets the opportunity to take a seat if they come from this orphan category. Every year we have a very strong admission support system, and we'll continue with the legacy of our support system. For any information, the information is available in terms of text, video and infographics on our website. हम वेबिनार भी शुरू कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट वेबिनार 31 मई को है, जिसमें हम सीसास जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसे हम दोबारा बच्चों के लिए शेयर करेंगे. और इसके बाद हम एक वेबिनार PWD कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स, ECA और स्पोर्ट्स के लिए, NC वेब और SOL के लिए भी करेंगे. ऑल दीज विल बी लाइव एंड दे विल बी अवेलेबल थ्रू आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, official YouTube channel of University of Delhi. We will also have an online grievance redressal mechanism, and at any time students, if they wish to connect to us, they can connect it to us through chatbots, emails and our telephone lines, which are already live. And our chatbots and emails will be made after we launch CSAS today. As Sir introduced, we will also be starting our admissions to SOL and NC Web. Today itself, SOL will start from 3rd of June. In NC Web, we offer, NC Web offers 12 BA program combinations and 1 BCom Pass program admissions. The total number of seats in BA program are 9,230. In BCom it is 5,980. तो तकरीबन 15,000 के करीब seats हैं through NC Web. For girls of NCT region, the number of colleges in which NC Web is offered is 26. Admissions to NC Web are based on the merit score of class 12th, which means CUET के आधार पर नहीं होंगे. ये NC Web में admissions जो हैं आपके class 12th के आधार पर होंगे. Only the women candidates belonging to Delhi NCT can take admission through NC Web, and the NC Web website, registration website, which will become live after this press conference, is ncwebadmission.uod.ac.in. More information regarding NC Web is published on their bulletin of information, which is already there on our website and on the website of NC Web. Good afternoon, everyone. And thank you, Professor Haneed, for giving this chance to SOL for announcing their admissions. Highlights of the admissions of 2024-25 are here in front of you. And before that, I just want to say that in 2022 and 23, we admitted 1,20,069 students. And in 23-24, we admitted 1,44,493 students. There was an increase of 24,000 students in the last year. SOL is committed to reach to those students who are last in the line, in a way that we want to reach to those students with quality education जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं. तो इसके लिए कुछ provisions भी किए गए हैं. Some new provisions are being done. For UG admissions, there will be no CUET required. For PG admissions, only in MBA and library sciences, no CUET will be required. But in rest of the
PG programs, we will register through CUET and the merit will be drawn from CUET itself. Commencement of UG admissions will be from 3rd of June, and from 3rd of June itself, we will have our portal live for registration for postgraduate programs. And the last date of admission is as decided by UGC DEB. E-prospectus again will be available after this press conference, and there are certain financial support schemes which have been announced by which are today. I feel honored to announce these financial assistance scheme. This is for PWD, then orphans, 2 seats per program where seats are fixed, and where seats are not fixed, then any number of orphans can take admissions. Armed forces and central police forces who are in service, who are retired, and the wards of armed forces and central police armed forces will have special scholarships or financial support scheme on the fees of School of Open Learning. Then transgenders, sole university employees and wards of SOL, employees and university employees, they will also have financial support scheme from School of Open Learning. Then meritorious female students scoring 8.5 CGPA and above in first year will have their total fee refund of SOL of the second year. Then FSS for economically weaker sections of the society is also there. In the last academic year, we have announced almost 2 crores of rupees, 2 crores for FSS scheme for economically weaker sections. And in case a student who is enrolled in SOL in 24-25 session gets admission in the regular mode, then till the last date of admission of SOL, then full fee refund will be available after deduction of only 500 rupees as a processing charge. So I request all the students to secure their seat and then apply also for CUET. Once you admission in the regular mode, you will have the chance to get the full fee refund from SOL. So this way you will be able to secure your seat at least at one point. Then the undergraduate admissions, undergraduate programs which we have is Bachelor of Business Administration, BBA, BMS, BA Honors Economics, English, Political Science, Psychology, BCom Honors, and BCom. Then in BA program, these are the major combinations which we are putting it here, but there are 122 combinations for which students can fill up their form. Then the UG for eligibility for UG admissions. Eligibility for UG admissions for honors courses, it is 45% aggregate in 12th class, and as per 45%, OBC 40.5, and SC/ST is pass in 12th class. Then in the program course, again, the 12th class is the basic eligibility in BA program. BA program with computer application, the student has to have either the mathematics or the computer science as a subject in 12th class. And for BA program psychology, again, the 12th class is the eligibility. Then these are the postgraduate programs which we are offering. Master of Business Administration, the admission is through merit. And courses under Library and Information Science Department is also under merit. There are 3 courses, BLISC, MLISC, and Postgraduate Diploma in Automated and Digital Library Management. Then there are other courses like MA Hindi, History, MCOM, Political Science, and Sanskrit. The admission will be through the merit of CUET, since the seats are limited. Eligibility, again, you can see for the PG program. For MBA, it is 50% from any recognized university. The advantage will be given to those who have some experience of working with corporate or anywhere else.
Then MCom, MA History, MA Sanskrit and Hindi, the graduation from our recognized university and 50% marks. And then Bachelor of Library Science, again the graduation, and Master of Library Science, BLISC courses from recognized university, and PG Dead Lamb, again BLib or MLib from any recognized university. Now here is just a few highlights of our students who have done very well in the last year. In the last session, Nancy Goel, MA Political Science, received Professor C.J. Chako Prize in Political Science and Karan Singh Medal. She was the topper of University of Delhi. And Payal Singh, again our first batch of BLISC student, she was also the topper of BLISC in Delhi University and received Gopal Krishan Gold Medal. Our students performed very well in sports and other activities also. So Diksha Dagar got this prize of she got the Arjuna Award in the BA program. She's a BA program student. One more announcement I would like to make here for the ease of admission for students of SOL. We have made a center, and this center will be operational from 15th of June. Most of our students, they come from a background where the availability of resources are very less, so they are unable to fill up the complete form properly. So once this problem is there, they just go to some cyber cafe or some other persons, and their form is not filled properly, and later on they have the problems as well as the SOL have the problems regarding their subjects, and they keep on changing their subjects after they fill up the form, and when they realize that this subject was not for you, and the whole process takes a lot of time, and there is a lot of problems. So what we have done this time is around 50 to 100 students. From 15th of June, we have made 2 centers. One is in North Campus, another is in West Campus of School of Open Learning. 50 to 100 students will be able to fill up their forms under the guidance of a School of Open Learning volunteers and the staff. So students can come over to these 2 centers, they can fill up their form, and these forms, they will be guided how to fill up the form, how to select their courses, and how to select their choices of the courses. So this is an additional thing which we are doing this year. Thank you so much. Thank you so much, Professor Haneet Gandhi. Thank you so much, Professor Payal ma'am. I am also pleased to inform that university will be admitting single girl child in each course of colleges and the university as supernumerary quota. So this is a new addition. A single girl child will be given. Again, it will be on the basis of the merit as is applicable for other students. As we gave last year, single girl child will be given admission also as a supernumerary quota in each course and every program of the school, college, as well as any departments and everything. Apart from that, I also would like to inform you that last time when we met, we started the registration for the postgraduate programs, BTech programs, and LLB programs. The links we have still extended for some more time. And then so far, total registration so far under PG program is 80,346 against the seats, 13,000 seats which are available, which includes the seat for NCWeb's course program also. Then total registration in BTech program is 9,052. We have about only 360 seats for 3 courses, computer science engineering, electronics and communication engineering, and electrical engineering. Then for 5-year integrated law, where we have 2 courses of BLLB and BBLLB, 60-60 each. The total registration so far is 7,362. We tentatively plan to start the process of allocation of these seats because the process is still open, and we plan to allocate these seats by 20th of June for PG as well as BTech as well as LLB programs. Now with this brief, if there are any concerns or queries, the house is open for discussion, please. सुपरन्यूमरी सब में था, शुरू से था, हाँ सब में है. बीटेक तो अभी इस साल लॉन्च हुआ है, सुपरन्यूमरी सब में था. जो सुपरन्यूमरी अलग तरीके के हैं. ऑर्फन लास्ट ईयर ऐड हुआ है, इस साल सिंगल गर्ल चाइल्ड ऐड करा है, ठीक है. बाकी सब में है,
कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी कोर्स के किसी के साथ नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड तो सिंगल गर्ल चाइल्ड ही है। हाँ जी बताइए प्लीज। पिछले साल यूजुअली देयर यूज्ड टू बी एन एडिशनल एडमिशन ना ऑफ 20%. वो एज इट इज है, 30% फॉर SC/ST, 20% फॉर UR एंड फर्स्ट, जो एडिशनल सीट्स तो चलेंगी फर्स्ट एलोकेशन में। मतलब मेरा एक कंफ्यूजन है क्योंकि पिछले साल ये रिवाइज हुआ था ना कि अगर कोई कॉलेज में 5% ड्रॉप आउट था, विड्रॉल था, वहां पे 10% आप ले जो लास्ट ईयर की पॉलिसी थी उसमें हमने पहली चीज बोली है, देयर इज नो चेंज इन एनी पॉलिसी। तो वो वैसे ही है। हम क्योंकि कुछ कॉलेजेस में जैसे सिंगल कोर्स है और वहां पे ड्रॉप आउट बहुत लेस हुआ, हमने जैसे 30% एक्स्ट्रा दिया और 20% एक्स्ट्रा दिया, तो कॉलेज को थोड़ी सी दिक्कत हुई। दे वर टू ऑफर अनदर 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस, सो दे फेस प्रॉब्लम्स। वी डिस्कस, तो लास्ट टाइम हमने चेंज कर दिया था। तो लास्ट ईयर की पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज, 30% एक्स्ट्रा सीट्स फॉर SC/ST, PWD, 20% सीट्स फॉर जनरल, UR, OBC एंड EWS category students. Sir, tentative commencement of this academic year will be? Tentatively, our date as of now is 21st of July. But seeing the situation, we are still awaiting. But we definitely would start our session by 1st of August. Thank you. For all the courses together. Bas. I was asking that in the last 2 years, ever since you started CSA's system, now in 22 and 23 as well as 23-24, what is the number of seats which remain vacant? Is there a problem of seats remaining vacant with the CSA system? And are you going to do something extra this year to see that all the seats are absolutely filled up? See, in the first year, because 2 years have already taken place for CSAS allocation. In the first year, we faced little problems, but yes, there are certain courses where the languages are combinations. So there the seats remain vacant. But if you have seen our trend in most of the colleges, because everybody is looking for a seat in the campus colleges. All our campus colleges, immediately all the seats get filled in these campus colleges. Then the other periphery near the ring road, the first ring road, their colleges again, and these colleges also the seats get fulfilled. Because there is no vacancy which remains as it is. But yes, no doubt about it, that despite our best efforts, last time we tried, we also allowed spot admissions. You are aware of that, that seats remain vacant. We allowed spot admissions also. But even then also, the takers were very few for those seats, that we opened those windows, stretched ourselves, but we could not get all the seats filled. See, the step the university has taken to fill all the seats was that in the first round of allocation itself, we are giving 30% allocation extra. We are giving 20% allocation extra. It means that if the students, if all the students give all the options, as Professor Haneeth has told, that we have about 1,500 plus combinations. 1,500 plus combinations. If students give all the combinations with all colleges, then there is no chance that any seat would remain vacant. But we respect the choice of the student. Then there is no option. We have to go by the merit only. And eventually, even then also, if the seat remains vacant, because last time when we opened the seats, even through spot admission also, the seats still remain vacant. So the first step we have taken is allocation of 30% extra, 20% extra, so that we can start our session also early. So that was the step we could take. What else we can take? If you can suggest, we can try that also. Spot भी allow किया हमने, सब कुछ allow. There is a difficulty in the CSS registration. If you lock the thing, if you say once you go for upgrading, you cannot go to the choices that have been already closed. Say for example, if you have 10 choices and you are getting your 5th choice honored, then you are going for upgrading. Then you can go off in the upward direction, not in the downward. Will you also open all the options for the student? That is very difficult for us, because when we allocate the seats, we are going upward movement. We can't open the downstreams, because then the system would be in a total chaos. Allocating a seat, because that's why, see, Professor Haneeth has been taking so much pain that we do stimulated list also. Why we give the stimulated? Because at least student can make out where they are getting the admissions. But that is not a final admission.
Many times students come and ask us ki I was getting in the simulated list, I was getting admission at X college, but when I did something I got admission in Y college. Why not in X college? Because see, you are aware only of your merit, you are not aware of the merit and choice of other students. So we are strictly going as per the merit of the student. The first is the merit, then is the choice. So there is no option to go down. Then the system will be very difficult. We are giving an option. You take admission, change your options, upward options, change your other options, and go for upgradation. So a due care is needed. As Madam has suggested, due care is needed while filling the options. You have all the options to choose the colleges, to choose the course, and then make a priority of your allocation system. एनसीवेब का डेट नहीं बताया आपने कि कब से शुरू करेंगे आप? एनसीवेब भी आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है एनसीवेब का। ठीक है। और लास्ट डेट क्या है इसकी? अभी एनसीवेब का देखो मेरिट बेस्ड है, तो हम लंबा चलाते हैं। एनसीवेब और एसएल थोड़ा लंबा चलते हैं हमारे, क्योंकि उनकी लास्ट डेट, अभी हम अपनी भी लास्ट डेट थोड़ी सी बढ़ाते हैं, आपको पता है हर बार कि हम थोड़ा रख के चलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या ट्रेंड आता है। लेकिन टेंटेटिवली हमारा उसके बाद ही हम एनसीवेब और एसएल को क्लोज करते हैं जी। एसएल तो हमारी अनलिमिटेड सीट्स हैं, तो उसको इतनी जल्दी क्लोज करने का फायदा ही नहीं है। वो इन एनी केस हम 31 जुलाई तक, जब तक हमारा सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक लेके जाएंगे ही जाएंगे उसको। लेकिन पीजी वाले में लिमिटेड है, हमारी सीट्स आर लिमिटेड। जिन कोर्सेज में सीट्स लिमिटेड हैं उसमें वी हैव टू गो एज पर दी प्रोटोकॉल। ठीक है। यूजी एडमिशन में ना सर, हर साल जो पेरेंट्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत होती है। वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूजी एडमिशन में, क्योंकि उनको पहले क्या होता था, कट ऑफ आती थी तो वो देख लेते थे, उस हिसाब से वो कॉलेज चले जाते थे। अभी वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, दूसरे का कितने पे हो रहा है। कई बार वो कहते हैं कि हमारे बेटे का इतना नंबर था, नहीं हुआ, उससे कम नंबर में दूसरे का हो गया। वो मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर रहे हैं आप? हमने देखिए, हमने कोई ये कंसर्न रहा, लेकिन हर बार हमने आपको आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, प्रोफेसर हनीत इज़ अवेलेबल, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनका प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारी गलती होगी वी विल करेक्ट अवरसेल्फ, लेकिन हमारा सिस्टम ठीक था। दूसरा, आप लोगों ने बोला तो हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि बच्चे के डैशबोर्ड पे अवेलेबल होगा कि उस कॉलेज में लास्ट कट ऑफ क्या गई है। लेकिन देखिए, उस लास्ट कट ऑफ, उसका लास्ट स्कोर क्या गया, वो एक पैरामीटर नहीं है उसका एडमिशन होने का। क्योंकि अगर आपके 100 में से 90 हैं और किसी के 100 में से 89 थे, 89 नंबर थे, और 89 वाले का एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहली चॉइस ही दूसरे कॉलेज को भरा ना। तो एक वो पैरामीटर आधार नहीं है इसका, क्योंकि सिस्टम इतना डायनामिक है। वी आर रिस्पेक्टिंग योर मेरिट एंड देन योर चॉइसेस। आपकी चॉइस को ही हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस अगर आप ए कॉलेज की बजाय बी रख दोगे तो मैं आपको बी में एडमिशन दूंगा, मैं चाह के भी आपको ए में नहीं रख सकता। तो हमने कोशिश करी है कि बच्चों के डैशबोर्ड पे कि एक अवेलेबल होगा, दी स्टूडेंट्स कैन सी एट द डैशबोर्ड की क्या चीज, क्या कट ऑफ गई है, वो जिन सवाल अप्लाई करेंगे। एक सवाल जो है कॉलेजों से रिलेटेड है। मैं कई कॉलेजों में अभी चुनाव के सिलसिले में बच्चों से मिलना हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया और उसकी बड़ी तारीफ की, लेकिन उसके इम्प्लीमेशन में प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमें जो कॉम्बिनेशन हमने चुना है, हमें क्लासेस उसकी नहीं मिलती हैं, हमें कहीं और जाना पड़ता है। तो ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उस पर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि कॉम्बिनेशन लिया, मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने कॉम्बिनेशन लिया और यूनिवर्सिटी ने देखिए भरसक कोशिश करी कि उनकी से टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। हमने क्लस्टर कॉलेजेस का भी कंसेप्ट चलाया कि आपके आसपास के कॉलेजेस हो जहाँ बच्चे हैं। अगर देखिए किसी कॉलेज में एक बच्चे, 2 बच्चे ने एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लिया है या किसी लैंग्वेज का कोर्स लिया है, ऐसे करके मैं देखता हूँ मेरे पास कई सारे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कॉलेज टू ऑर्गेनाइज ए टीचर टू टीच वन स्टूडेंट इन ए कॉलेज। तो हमने इसीलिए क्लस्टर कॉलेजेस का कंसेप्ट चलाया। उस क्लस्टर कॉलेजेस के कंसेप्ट पे हमने वो प्रोविजन भी रखा कि वो क्लासेस कॉलेजेस में हो जाए। हमने ये कंसेप्ट भी दिया कि उन बच्चों की, जो वो बच्चे हैं, छोटा ग्रुप है, अलग अलग है, काफ़ी स्कैटर्ड है, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रोविजन हमने करा है कि ये नहीं कह सकता कोई बच्चा कि मेरी
नहीं प्रोवाइड हुई कि यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन ऑल स्टेप्स, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स, आई एम थैंकफुल टू माय ऑल प्रिंसिपल्स, दे अप्राइज अस कि ये चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे ये स्टूडेंट रह गए हैं जिनकी क्लासेस नहीं हो पाई, तो यूनिवर्सिटी अरेंज दोज क्लासेस और वो क्लस्टर करके करी है। एक लास्ट सवाल बस फीस को लेकर के है Please. कि एक ही कोर्स की बहुत सारे कॉलेजों पे अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर है, और तो क्या डीयू कोई रेगुलेशन या कोई कुछ रेगुलेटरी सिस्टम लाएगा कि कोई बहुत ज़्यादा उस कोर्स की फीस ले रहा है, कोई बहुत कम में पढ़ा दे रहा है, जबकि कोर्स वही है, टीचर्स की सिलेक्शन का पैरामीटर वही है, फैसिलिटी भी लगभग कॉलेजों में वही है, तो फिर ये वेरिएशन क्यों? देखिए, ये कुछ पैरामीटर्स हमने कॉलेज के उनके पार्ट पे होते हैं, फी टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉलेज, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने अपना कुछ स्ट्रक्चर उनको फीस का जरूर दिया है कि आप उस स्ट्रक्चर पे फीस डालिए, उन्होंने कोशिश करी है फीस डालने की। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया कि बहुत बड़ा वेरिएशन हो किसी फीस का, कि कोई 50,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, क्योंकि हमने वो भी कोशिश करी देखने की, जानने की, लेकिन हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि इतना बड़ा वेरिएशन हो। और अभी तक हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम फी को रेगुलेट कर सके, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर जरूर दिया कि आप फीस उसमें डालो, सो दैट कि वो पैरामीटर्स डिफाइन करे फी के लेके कि कहाँ कहाँ फीस का स्ट्रक्चर जो आप आएगा, कैसे कैसे फीस डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ होगी, कई पैरामीटर्स वेग थे। सो वी स्टार्टेड विद दैट। अभी हमारा 1 साल हुआ है उसको लेके। अगर हमें लगेगा कि वी नीड टू रेगुलेट दिस ऑल्सो, वी वुड थिंक ओवर कि हाउ कॉम्पिटेंट वी आर टू रेगुलेट दैट फीस ऑल्सो। सर, एक तो फेज 1 का जो लास्ट डेट कुछ फिक्स हुआ है क्या? जी, क्या बोला आपने? 16? सर नहीं, अभी फेज 2 हमारा शुरू हो जाएगा, CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे। Phase one का- फेज 2 उसके साथ चलता रहेगा। फेज वन रोकते नहीं है। सर, हॉस्टल में एडमिशन के लिए क्या कुछ नया सिस्टम आ रहा है या पुराना ही रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा या नहीं? सेंट्रलाइज नहीं कर पाए हम उसको। अच्छा। अभी हम सेंट्रलाइज नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा। कि क्या- सर, मैम से है लास्ट क्वेश्चन कि SOL के स्टूडेंट्स हर साल उनका कंप्लेन रहता है कि स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता है, ख़ास तौर पे हार्ड कॉपी उसकी नहीं मिलती है, तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है कि बिल्कुल टाइम पे उनको मिल जाए सेशन शुरू होते ही? लास्ट टाइम तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का हमने सबसे पहले ही दे दिया था, सेकंड सेमेस्टर का भी मटेरियल उनको साथ में ही दे दिया था, और इस बार भी सारा मटेरियल साथ में मिला है। लेकिन जब वो कुछ चॉइसेस स्किल कोर्सेज की या कुछ ऐसी चॉइसेस आ जाती हैं जिसमें स्टडी मटेरियल प्रिपेयर होने में देर लगती है, तो बेसिकली स्किल कोर्सेज का मटेरियल उनको बाद में मिला है। बाकी सारा कोर कोर्सेज, जी, इन सब का मटेरियल उनको टाइम पे मिल गया है। और इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल टाइम, लेकिन बिकॉज बहुत सारी फैकल्टी नहीं आई है, तो हम उस मटेरियल को अपग्रेडेशन में लगे हुए हैं, तो इसलिए इस बार फर्स्ट सेकंड का इकट्ठा नहीं देंगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का एक साथ देकर, और फिर उसके बाद इवन सेमेस्टर का दिसंबर में देंगे। आपके यहाँ ऐप बनने वाला था, क्या बन गया है? हाँ, वो ऑलमोस्ट रेडी है, ऐप भी है उसमें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है। हमारी जितनी IA चल रही है वो सारी उसी पे चल रही है, इंटरनल असेसमेंट। और अब जब स्टूडेंट मेरे ख्याल से जुलाई में सारे जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, जहाँ पर उनको अपने सारे नोटिसेस, अपना सारा मटेरियल, क्विज, कंटिन्यूस असेसमेंट, वो सारा उस पर मिलेगा। उसका नाम है प्रज्ञान। मैम, आपसे भी और गांधी मैडम से भी क्वेश्चन है कि हज़ारों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो इनके लिए कोई अपना स्टूडेंट केयर सेंटर बनाया कभी? जैसे वो कोई डाउनलोड करता है अपना सर्टिफिकेट, नहीं हो पाता, गेटवे में पेमेंट फंस जाती है, ऐसा कोई आपने स्टूडेंट केयर सेंटर बनाया है आप दोनों ने? सर, एक तो हमारा सेंटर एडमिशन वेब ब्रांच में ही है, जिसके थ्रू हमारी ईमेल्स पे सारे जवाब जा रहे हैं, विद इन 48 आवर्स सबको जवाब मिल जाते हैं, और वहाँ पर फोन लाइन और चैट बोर्ड्स भी फंक्शनल हो जाएंगी। वी हैव इंटर्न्स, स्टूडेंट इंटर्न्स विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम डे आफ्टर, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो दे विल बी ज्वाइनिंग। इन एनी केस माई कोलीग्स आर एड्रेसिंग ऑल थ्रू द मेल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉलेजेस में जो हेल्प डेस्क है उसकी भी हमने एडमिशन वेबसाइट के ऊपर लिस्ट दी हुई है। जिन कॉलेजेस ने ऑफर किया था वहाँ पर सेंटर खोलने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे, ग्रीवियांस की भी पूरी इन्फॉर्मेशन और हेल्प डेस्क की भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी कोई वेबसाइट पे है। फिजिकल आके आपके अगर बना दें आप, वो बेटर रहेगा। कभी नहीं लोड हो पाता, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमारे जितने कॉलेजेस हैं जिनके पास कंप्यूटर लैब है, हम नहीं चाहते कि बच्चा दूर से यहाँ पे आए, ऑनलाइन का है तो वो वहाँ जाके उधर से भी हेल्प ले सकता है।
ठीक। कॉलेजेस को हमने लिखा हुआ है सर एक रूम डेडिकेट करने के लिए। एक बार अगर फिर दोबारा से प्रिंसिपल्स वगैरह हम वो एक एडवाइजरी इशू कर देंगे, और क्योंकि उनके पास, क्योंकि ये हम मानते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल में कई बार दिक्कत आ सकती है, बच्चे के पास फैसिलिटी नहीं है, गरीब बच्चा कंप्यूटर नहीं है, तो वो वहाँ जाके भर सकता है। और वो कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में स्टाफ भी अवेलेबल है, प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर रेडी टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई नीडी स्टूडेंट आता है कॉलेजेस में तो। सर आपसे भी एक सवाल है कि जो 5 ईयर LLB का कोर्स आपने लॉ का स्टार्ट किया है, वो भी इसमें एडमिशन है या उसका दोबारा से होगा? नहीं, वो तो हमारा फॉर्म आ चुके हैं ना 5 ईयर LLB के, मैंने बताया ना। अच्छा। 7,362 फॉर्म हमारे आ चुके हैं, बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें सीट एलोकेशन पे जाना है, तो वो हम 20 जून के आसपास करेंगे। टोटल कितनी सीट्स है? 120, 60 और 60, 120 दो ही कोर्स है ना हमारे, BA LLB और BB LLB। थैंक यू। SOL में भी, एक्सक्यूज मी, SOL में भी ये सेंटर हमने शुरू कर दिया है। 2 जगह पे ये सेंटर है और वहाँ पर स्टूडेंट्स जाके फिजिकली अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स अवेलेबल देयर। 1 घंटे में हम नियरली 100 स्टूडेंट्स को केटर कर पाएंगे। MBA की टोटल सीट्स तो अराउंड 5,000 के आसपास हैं, और इसका जो एडमिशन है 2 कैटेगरीज में होता है, एक तो मेरिट बेस्ड और दूसरा जो एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं पे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर उनके बेसिस पे होता है। हेलो सर। जी प्लीज। जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला है, सीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है? सब में ही होगा फिर। और लास्ट ईयर जब ऑर्फन्स के लिए प्रोवाइड की थी तो फीस भी एग्जेम्प्ट की थी, तो इस साल वो उनको देखिए, पिछली बार हमें दिक्कत आई, लेकिन हमने इस बार उनसे सिर्फ 10 रुपीज़ की फीस लेंगे ऑर्फन से। ऑर्फन विल पे ओनली अ फीस ऑफ 10 रुपीज़। वो सिर्फ इसलिए कि सो दैट कि पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एडमिशन कंफर्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई फीस नहीं लेते तो वो लर्च में रहता है बच्चा कि उसका हुआ नहीं हुआ। तो एक नॉमिनल फीस है 10 रुपीज़ की ऑर्फन्स के लिए। बट सिंगल गर्ल चाइल्ड को देनी पड़ेगी फीस। अभी तो यही है। और स्टार साहब एक सवाल है। एडमिशन का प्रोविजन किया है हमने, बस। जी बताइए। जी सवाल सर मेरा ये है कि इस बार जो DU की एडमिशन प्रक्रिया है वो कितनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी 1 महीना तो रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया गया और NTA का कहना है कि वो जून के फर्स्ट वीक में अपना रिजल्ट दे देगा। तो जाहिर बात है कि हम ये वॉक ओवर दे रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। नहीं, ऐसा देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि किसी को हम कुछ दे रहे हैं। हमारा प्रोसेस देखिए, हमारा हर साल प्रोसेस मई में ही शुरू होता है। आप थोड़ा सा पिछले सालों में चले जाइए, CBSE क्लास 12th के रिजल्ट्स 22 मई को डिक्लेयर करती थी और यूनिवर्सिटी अपना काम 21 मई 22 मई को शुरू करती थी। इस बार हम 21 मई को भी तैयार थे अपना काम स्टार्ट करने के लिए, हम 1 मई से भी तैयार थे, लेकिन हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका CUET चल रहा था। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 मई की प्लान करी थी पिछले हफ्ते। हमें नहीं पता था कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 29 को पड़ जाएगा, तो आज हमें उम्मीद थी कि किसी का कोई एग्जाम नहीं होगा। दे कैन सी दिस टेलीकास्ट एंड दे आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। एक दूसरी बात देखिए, कुछ पॉलिसी बनी, आप कह रहे हैं NTA ने आपको बताया फर्स्ट वीक का, नहीं, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। हमारे को उम्मीद है कि NTA रिजल्ट और जल्दी डिक्लेयर करेगा। तीसरी बात जो आपने बताई कि किसी को एडवांटेज, कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने क्रेडेंशियल्स की वजह से जानी जाती है। अपने यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने 100 साल के इतिहास में अपनी 100th कन्वोकेशन करी है। तो इसका मतलब हर साल कन्वोकेशन हुई, हर साल हमारे एग्जामिनेशन हुए, हर साल हमारी डिग्री अवार्ड हुई, कोई भी गैप हमारा नहीं आया। चौथी बात, हमारा सेशन, हमने आज ही आप लोगों को बता दिया कि हम 1 मई से अपना सेशन, 1 अगस्त से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं टेंटेटिव। उससे पहले भी है, अभी मैंने कैलेंडर डिक्लेयर नहीं करा है, एकेडमिक कैलेंडर 24-25 का, तो मैं 1 अगस्त से अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोगों के जरिए यही तो बता रहे हैं बच्चों को कि भाई गो फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट, वाई यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन एनीवेयर एल्स। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है, हम किसी को कैसे रोक सकते हैं एडमिशन नहीं लेने के लिए कहीं पे। सर पिछली बार जो है वो 16 अगस्त से सेशन शुरू हुआ था और तब तक 5 से 10% एडमिशन भी नहीं हुए थे। ऐसा नहीं था, हमारी 2 लिस्ट निकल चुकी थी। आप कॉलेजेस की लिस्टें देखेंगे, मैंने बताया ना कि डिमांड चॉइस के ऊपर है, ये चॉइस बेस्ड है। मैं किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकता तुम इस कोर्स में एडमिशन ले लो, उसकी अपनी चॉइस है। वी आर रिस्पेक्टिंग देयर चॉइस। और हमने 16 अगस्त को तब इसीलिए स्टार्ट किया था, हमारी 2 लिस्टें उस टाइम पे निकल चुकी थी एडमिशन्स की,
और इस बार तो हमारी 3 लिस्टों की उम्मीद है, हमें 3 या 4 लिस्टें हमारी निकल जाएंगी तब तक। डिपेंड्स कि एनटीए रिजल्ट अपना कब तक देता है। अभी सर आप एक पत्रकार साथी के सवाल के जवाब में बता रहे थे कि बीए प्रोग्राम में बहुत अधिक कॉम्बिनेशंस हैं, बच्चे की चॉइस है, पढ़ना चाहता है, इस वजह से सीटें खाली रह जाती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे पास आंकड़े रहे हैं कि बीकॉम ऑनर्स जो कि टॉप कोर्स है ड्यू का, उसमें भी सीटें खाली रही इन स्पाइट ऑफ की मॉपअप राउंड भी हुआ। और उसका एक ही कारण जो पेरेंट्स बताते हैं वो ये कहते हैं कि सीएसएस जो पोर्टल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जो ग्रीवांस जो रिजल्ट होता है वो भी केवल मतलब कागजों में ही हो रहा है। वो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। सीएसएस पोर्टल आप कहते हो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आपने कहा मैंने मॉपअप राउंड भी दिया, मॉपअप राउंड तो सीएसएस के थ्रू नहीं था, मॉपअप राउंड तो सीधा कॉलेज में जाके था। लेकिन सर उसमें एक भी एडमिशन 12th के मार्क्स पे नहीं हुए, वो भी सीएसएस पे ही था। सुनिए, नहीं एडमिशंस कॉलेज उसमें कहा गया था, उसमें सर कहा गया था कि आप 10+2 के स्कोर पे ले सकते हैं, पर नॉट ए सिंगल कॉलेज जिसने लिया, जिसने मॉपअप राउंड में भाग लिया। हमने नहीं रोका, हमने तो जो पॉलिसी यूजीसी ने नोटिफाई करी, वी सिंपली अडॉप्टेड दैट पॉलिसी ऑफ द यूजीसी, और हमने उसी टाइम नोटिफाई करी। और आपके थ्रू ही जिन जिन कॉलेजेस को कंसर्न्स थे, हमने उनको स्पेशली बोला कि भाई अब सीटें भरो आप। 609 एडमिशन हुए थे, उसमें भी सीटें थी, लेकिन 609 हुए। मैंने कहा बच्चों की चॉइस है ना सर, उसमें केवल 10% से ज़्यादा जहाँ सीटें खाली थी जिस कॉलेज में, उन्हीं को मॉपअप राउंड में भाग लेने दिया गया, बाकी और कॉलेज भी आना चाहते थे। नहीं 10 पर देखिए, फिर उसके बाद कहता ना बहुत सारी, अब आप वो एंडलेस प्रोसेस है कि हमने ऑलरेडी जब 30% और 20% एक्स्ट्रा दी तो बच्चे तो सीटें भर गई। अब किसी एक प्रोग्राम में अगर सीट उसकी नहीं भरी टोटल इनटेक के बेस पे, और अगर मैं वहाँ पे एडमिशन देता हूँ मॉपअप में जिसका एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ पे ऑप्शन किसके लिए था कि जिसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, जिसका कहीं एडमिशन नहीं उसके लिए था ना। अगर मैं सबको अलाउ करता हूं तो फिर एक सर्कस शुरू हो जाएगा, चेन ऑफ एडमिशन शुरू हो जाएगी। उस सर्कस को मैं कैसे रोकूंगा एडमिशंस को, क्योंकि मेरे को सेटल करके अपना सेशन भी स्टार्ट करना था, तो उस चीज को कंट्रोल भी करना है मुझे। आपने कहा मॉपअप शुरू करा, हमने मॉपअप शुरू करा, लेकिन मॉपअप वाज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स कि जहां सीट्स, अगर मेरे किसी कॉलेज के अंदर एक सीट वेकेंट है और वहां मैं मॉपअप पे देता हूं, फिर आप कहोगे जी यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गया था 690 का और एडमिशन हो रहा है 200 नंबर वाले का, तो मैं हर चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो अपनी पॉलिसीज को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरे प्रोसेस को भी मुझे प्रोटेक्ट करके चलना है, और सीट्स का जितना मैक्सिमम भर सकता है वो कोशिश करनी है भरने की। जी, एक सवाल सर आपसे और है, वो ग्रीवांस रिडर्सल को लेकर है। जी, आपने इस बार भी कहा कि ऑनलाइन ग्रीवांस रिडर्सल ही होगा, लेकिन पेरेंट्स बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे, धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, और उनका जो है ग्रीवांस रिड्रेस नहीं होता है। तो क्या इस बार जो है वो कोई उनके लिए ठीक ठाक व्यवस्था कर दी जाएगी, कॉन्फ्रेंस सेंटर में बिठा दिया जाएगा? हमारे कॉन्फ्रेंस सेंटर में हमारी DSW की टीम होती है, स्टूडेंट्स वेलफेयर की जो हमारी टीम है, उन्होंने हर तरीके का ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया है। हमने हर तरीके का ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड हमने प्रोसेस का बनाया है। और ऐसा जैसे हनी जी ने बताया, खासतौर से एडमिशन के केस में हमें नहीं ऐसा लगता कि किसी बच्चे को ऐसा हो कि उसको जानकारी नहीं मिली हो उसके ऊपर कंसर्न की या ग्रीवेंस की, लेकिन कई ग्रीवेंसेस अनकॉल्ड फॉर होते हैं जिसका हमारे पास आंसर ही से बताया ना। अभिनव जी ने पूछा ना कि जी ट्रांसपेरेंसी का, अब हम ट्रांसपेरेंसी का हम दे रहे हैं आपको पोर्टल, तो क्या मान के चलो सर इस बार सपोर्ट सिस्टम सही काम करेगा? सपोर्ट सिस्टम हर समय काम कर रहा है सही तरीके से। इस बार सर बच्चे मेल भेजते रहते हैं, फोन करते हैं, फोन उठता नहीं है। बच्चों को 48 आवर्स में रिप्लाई भी मिलता है, और हमारे जितने ऑनलाइन मैकेनिज्म है सब दे आर ऑल इन प्लेस टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स ओनली। आज अगर हम एडमिशन भी सीधा लॉन्च कर सकते थे, आप लोगों को हमने क्यों तकलीफ दी? आप लोग आओ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा बच्चों को सूचना पहुंचेगी, लोग अवेयर होंगे, उनके पेरेंट्स जो न्यूज़पेपर या आपकी मीडिया की जो वीडियोस देखेंगे उनको पता चलेगा कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें वो करना है वो कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी ट्रबल्ड यू टू कम टू दिस प्लेस। एक सवाल मेरा प्रोफेसर पायल मागो मैम से है। अब हम SOL में नए कोर्स तो लगातार शुरू होते जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने परंपरागत कोर्सेज हैं उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। बच्चों को ना तो प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं और ना ही जो है वो उनको स्टडी मटेरियल मिल पा रहा है ठीक से। मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी पुरानी है। पिछले साल की परसेप्शन पे अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार रिज़ल्ट आने से पहले जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए वैसे ही पर्सनल कांटेक्ट क्लासेस शुरू हो गई। मैं सबसे पहले पर्सनल कांटेक्ट क्लासेस पे बात करती हूँ। DEB के नॉर्म्स से जो 15 क्लासेस मिलनी चाहिए वो हर स्टूडेंट को मिली है।
कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको नहीं मिली है। जहाँ पे 10 क्लासेस मिलनी चाहिए वो 10 क्लासेस मिली हैं। उसके बाद में हर वीक में उसका जो इवनिंग है, इवनिंग इज़ बिजी विद द ऑनलाइन क्लासेस, जो उसको 2 घंटे की अपने कोर कोर्सेज की क्लासेस ऑनलाइन मिलती है, वो एडिशनल है। और ये सारा ख़त्म होने के बाद में इस बार हर कोर कोर्स में जितने भी, चाहे वो 3 कोर कोर्सेज रहे हों, चाहे बीए के 2 कोर्सेज रहे हों, उसमें उसको 5.5 से 6 घंटे के रिविजन क्लासेस मिली हैं। मुझे लगता है कि शायद ये वाला प्रोसेस आपको पता नहीं है। और उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड कोर्सेज एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यू कोर्सेज। और जहाँ तक स्टडी मटेरियल का प्रश्न है, स्टडी मटेरियल तो जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो जून में एडमिशन शुरू होता है, तो पिछली बार भी जून के एंड से जुलाई से ही, चाहे वो पूरे एडमिशन्स हुए हों या ना हुए हों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल हमने तुरंत देना शुरू कर दिया था। और उसके जैसे ही रिजल्ट आता है तो थर्ड सेमेस्टर का मटेरियल देना शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स को पहले के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा क्लासेस मिल रही हैं, रिविजन क्लासेस भी मिल रही हैं, और मटेरियल भी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपका परसेप्शन उससे पिछले साल का है। मैम Hanees ma'am say a question. Ma'am, last year, may I please know which were the most sought after courses that DU received the highest number of applications for? Last year or this year CUET? Last academic 2023 academic session. Actually, it's consistent in CUET also. Last year also, BCom honors, political science honors. It's the same. Same. This year also in CUET, we've received maximum applications in BCom honors, which is 1,25,866 through CUET. BCom program 1,17,113, and then English honors 99,792. Just another question, ma'am. Last year you've started this very good initiative for the orphans, and we've spoken to them, and a lot of students, they're exempt from paying the fee because we understand the burdens on them. But they've expressed their main concern, stating that even though they are not able to pay the fee here, the living cost in the city is too high. So is there any initiative, because we've also done a story on this, we've spoken to the Vice Chancellor, he said there might be a provision to reimburse it, but there was no official announcement as such. So हमने हॉस्टल्स को रिक्वेस्ट करी है कि हॉस्टल भी ऑर्फन को एडमिशन देंगे, उनसे फीस चार्ज नहीं होगी हॉस्टल की, बट दे हैव टू पे द फीस जो भी फूड का है। हमने हॉस्टल्स को, वी हैव आस्क्ड द हॉस्टल्स टू प्रोवाइड द सीट्स टू ऑर्फन स्टूडेंट्स आल्सो। So a percentage of reservation in hostel? As such, there is no percentage. We can't fix any percentage of reservation. We have asked them to give, to help as much as possible, give the seats to the orphan students also. This is equally applicable for the colleges too. They have to pay only the fees for their food, whatever they would take. Otherwise, there would not be any charges for hostel also. Many colleges, there are no hostels. Please. Children were given admissions last year. Last year was 101. 101. Yes. In all the courses, all the colleges. Yes. That was the first time. So this time. और आपको पता है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उन्होंने सब यूनिवर्सिटी की, ऑल दी यूनिवर्सिटीज़ को, दे आस्क्ड देम कि जैसा इनिशिएटिव दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिया है आप भी दीजिए, आप भी ऑर्फन स्टूडेंट्स का ध्यान रखिए और एडमिशन्स की कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए। ऑर्फन का उनके बस उनका पेरेंट्स नहीं है, जिनके ऑर्फन्स तो वही हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड दो जिनके मतलब माता पिता की एक ही बेटी है, ऑर्फन्स हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। Only child, that to girl. डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ जी, वो भी ले सकते हैं, हमने किसी को नहीं रोका। हाँ नहीं, उनका बच्चों का जो डेथ सर्टिफिकेट, इसके डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, अनाथ आश्रम कुछ देंगे, बताएंगे उनके, तो वो उस तरीके से देंगे डॉक्यूमेंट्री कि भाई ये है। तो भाई पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट तो होगा, अधिकतर के पास है, नहीं होगा फिर देखते हैं। लेकिन अनाथ आश्रम वाला भी अगर देगा कि हमारे अनाथ आश्रम में इतने साल से रह रहे हैं, सो देन वी विल सी कि पेरेंट्स का क्या, क्योंकि पेरेंट्स का नाम क्या है, कई चीज़ें चाहिए होंगी रिकॉर्ड के लिए।
सबके लिए है। हमारे लिए तो ऑर्फन है ना, ऑल ऑर्फन्स आर इक्वल, चाहे कहीं भी हो। हाँ, तो हमने आपके माध्यम से आप पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन उन तक, सब तक, ठीक है। सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस थिंग, बट बिफोर दिस आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर बलराम पानी जी टू काइंडली लॉन्च द एडमिशन पोर्टल। एक बार आप कर दीजिए सर, बुलेटिन रिलीज करवाया था और एडमिशन पोर्टल लॉन्च करवा दो सर से पहले। आप आओ सर, क्लिक क्या करना है बताओ। थैंक यू सर। अब रिलीज करवाया था, अभी करता हूँ। Just one more minute. I would request the team to kindly release the bulletin of information also, which is ready with us and will be available on the website. Bulletins are ready. We are releasing as well as the bulletin. बहुत सारे दो कर दिया। डाउन